Good morning, students. The next part of redox reaction is oxidation and reduction on the basis of oxidation number concept and oxidizing and reducing agent on the basis of oxidation number concept. So define oxidation and reduction on the basis of oxidation number concept. Oxidation number concept. What is oxidation number? The charge of an atom. The electrical charge which appears on an element of an atom, it is known as oxidation number. Sodium, in sodium chloride, sodium has oxidation number +1, क्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1. इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किए हैं, सो ऑक्सीडेशन नंबर फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. सो डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीडेशन, डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन. Oxidation is an increase in the oxidation number of an element in a given substance. Simple definition देखो, the process in which oxidation number of an atom increases is called oxidation number. Is called oxidation. The process in which oxidation number of an atom increases is called oxidation, and the process in which oxidation number of an atom decreases is called reduction. ये सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई है. नाउ टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट. Oxidation is an increase in the oxidation number of an element in a given substance. For example, in the given reaction, Fe solid gives Fe plus 2 aqueous solution. Fe, the oxidation number of Fe is 0 and the oxidation number of Fe plus 2 is +2. बराबर है ना? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मोनोएटॉमिक एलिमेंट है, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा और Fe plus 2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2. सो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, 0 to +2. सो दिस इज ऑक्सीडेशन. This process is known as oxidation. So oxidation is an increase in the oxidation number of an element in a given substance. It is known as oxidation. Then what is reduction? Reduction is a decrease. Oxidation means increase. So therefore reduction means decrease. Reduction is a decrease in the oxidation number of an element in a given substance. For example, Cu plus 2 aqueous gives Cu. यहाँ पर Cu plus 2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है और Cu का ऑक्सीडेशन नंबर 0. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर डिक्रीजेस फ्रॉम +2 to 0. सो दिस इज नोन एज oxidation and reduction. Once again, what is oxidation? Oxidation is an increase in the oxidation number of an element in a given substance, and reduction is a decrease in the oxidation number of an element in the given substance. It is known as reduction. Okay, now define the term oxidant, that is oxidizing agent, and reductant, that is reducing agent, in terms of oxidation number. Define oxidant and reductant in terms of oxidation number. What is oxidant? Oxidant means oxidizing agent. Oxidant or oxidizing agent is a substance which increase the oxidation number of an element in a given substance and itself undergoes decrease in oxidation number of a constituent element in it. It is known as oxidant. Very simple definition. Once again, what is oxidant? Oxidant or oxidizing agent is a substance which increases the oxidation number of an element in a given substance and itself undergoes decrease in oxidation number of a constituent element in it. It is known as oxidant. Now what is reductant? Reductant or reducing agent is a substance which decreases the oxidation number of an element in a given substance and itself undergoes an increase in oxidation number of a constituent element in it. That is known as reductant. सिंपल डेफिनेशन है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन सिंपल है. सो what is oxidant? Once again, oxidant or oxidizing agent is a substance
which increases the oxidation number of an element in a given substance and itself undergoes decrease in oxidation number of a constituent element in it. So simple language में समझो x reacts with y gives xy, तो x का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और y का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है. x का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और y का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो y का डिक्रीज हुआ, y ने खुद में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, लेकिन y ने x का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है. y ने x का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है तो y क्या है, ऑक्सीडेंट है, और x का खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, लेकिन x का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, लेकिन x ने y का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, इसीलिए x क्या है, रिडक्टेंट है. So oxidant or oxidizing agent is a substance which increases the oxidation number of an element in a given substance and itself undergoes decrease in oxidation number of a constituent element in it. This is known as oxidant. And reductant. Reductant or reducing agent is a substance which decreases the oxidation number of an element in a given substance and itself undergoes an increase in oxidation number of a constituent element in it. Okay. अभी एग्जाम्पल देखने के बाद आपको समझ में आएगा. यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई whether the following reaction is redox or not. Identify whether the following reaction is redox or not. State oxidant and reductant. ये रिएक्शन जो दिए है वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है, और उस रिएक्शन में अगर ये रिएक्शन रिडॉक्स है तो उस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है वो डिटरमाइन करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो पहला एग्जाम्पल दिया है, क्या है एग्जाम्पल देखो, 3H3ASO3 3H3ASO3 plus BrO3 minus gives Br minus plus 3H3ASO4. Once again, what is the given example? 3H3ASO3 plus BrO3 minus gives Br minus aqueous plus 3H3ASO4. सो आंसर क्या लिखना है देखो, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. अभी आपको सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं. ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको फाइंड आउट करने नहीं आया, कल हमने देखा है, परसों हमने देखा ऑक्सीडेशन नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स. नाउ इन द रिएक्टेंट H3ASO3, इन दैट हाइड्रोजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर +1. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, और ऑक्सीजन का -2. सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ AS, डिटरमाइन करो. AS का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 3 ऑक्सीजन मीन्स -6 एंड 3 हाइड्रोजन मीन्स +3. ओके, -6 + 3 -3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +3. सो AS हैज ऑक्सीडेशन नंबर +3. नो सेकेंड वन BrO3 माइनस, सो दिस इज पॉलीएटॉमिक आयन ना, सो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज -1. सो BrO3 माइनस, सो ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 दैट इज -6 राइट में जाएगा तो +6 +6 -1 +5. सो Br हैज ऑक्सीडेशन नंबर +5. ओके, now here this is monoatomic ion. What is the oxidation number of Br minus? This is -1. okay, and here H3ASO4, in that oxygen has oxidation number -2, hydrogen +1, and AS oxidation. What is the oxidation number of AS? +5. okay, so +5. so here oxidation number of which species increases? यहाँ पर AS का oxidation number +3 है और यहाँ पर AS का oxidation number +5 हो गया, तो arsenic का oxidation number increase हो गया. The oxidation number of arsenic increases from +3 to +5 and the oxidation number of Br decreases from +5 to -1. +5 से -1 डिक्रीज हो गया और आर्सेनिक का +3 से +5 इंक्रीज हो गया. सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक इंक्रीजेस फ्रॉम +3 टू +5 एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन डिक्रीजेस फ्रॉम +5 टू -1. सो आइडेंटिफाई द स्पीसीज दैट अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो किस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? आर्सेनिक ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इंक्रीज किसका इंक्रीज हो रहा है? आर्सेनिक का इंक्रीज हो रहा है. सो आर्सेनिक लॉसेस इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय आर्सेनिक? +3 to +5, 2 electrons are lost by arsenic.
देखो +3 टू +5, 2 से इंक्रीज हो गया ना, +3 टू +5, आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से इंक्रीज हो गया, +2 से। सो देयरफॉर arsenic losses how many electrons, 2 electrons, so loss of 2 electrons by arsenic and gain of how many electrons by bromine, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +5, +5 से क्या हो गया, -1, सो +5 से गिनो, +5 +4 +3 +2 +1 0 एंड -1, 6 से डिक्रीज हो गया, कितने से डिक्रीज हो गया, 6। So that's why bromine gains how many electrons? Gain of 6 electrons and loss of 2 electrons. Therefore, the loss of 2 electrons by arsenic and gain of 6 electrons by bromine. Okay. So bromine, arsenic undergoes oxidation and bromine undergoes reduction. So यहाँ पर arsenic ने oxidation number, arsenic का oxidation में increase हुआ है, तो arsenic ने किसका oxidation number decrease किया, arsenic increases itself its oxidation number but it decreases oxidation number of bromine. arsenic bromine का oxidation number decrease कर रहा है और bromine arsenic का oxidation number increase कर रहा है, तो oxidizing agent इसमें कौन होगा, जो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अनदर स्पेसीज। तो ब्रोमीन आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो BrO3 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H3AsO3 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, BrO3 ने H3AsO3 का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है, ब्रोमीन ने आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है, इसलिए ब्रोमीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आर्सेनिक ने ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, इसलिए आर्सेनिक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, सो या देखो अभी एक्सप्लेनेशन क्या है, the oxidation number of As increases from +5 to the oxidation number of As increases from +3 to +5 and that of Br decreases from +5 to -1. Once again, third point, the oxidation number of As increases from +3 to +5 and that of Br decreases from +5 to -1 because oxidation number of one species increases and that of another species decreases, the reaction is redox reaction. बराबर है ना, ये रिएक्शन रिडॉक्स क्यों है, क्योंकि वन स्पेसिस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और अनदर स्पेसिस का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो दिस रिएक्शन इज एन रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन स्पेसिस इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ अदर स्पेसिस डिक्रीजेस, द रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ As increases by loss of 2 electrons. The oxidation number of As increases by loss of electrons and therefore As is a reducing agent. The oxidation number of As increases by loss of electron. The oxidation number of As increases by loss of electrons and therefore As is a reducing agent. As क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसे कहते हैं oxidizing agent. The species which increases oxidation number, it acts as an reducing agent, and the species which decreases the oxidation number, it acts as an oxidizing agent. So therefore, fourth point is very important. The oxidation number of As increases by loss of electrons and therefore As is a reducing agent and itself is oxidized. On the other hand, the oxidation number of Br decreases and therefore Br is an oxidizing agent and it itself is reduced by gain of electron. As का ऑक्सीडेशन हो रहा है, As का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मीन्स उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर आर्सेनिक का इंक्रीज हो रहा है, मतलब आर्सेनिक में ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो As क्या है, As इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ब्रोमीन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सो वंस अगेन पॉइंट नंबर 4, the oxidation number of As increases by loss of electrons and therefore As is reducing agent and
itself is oxidized. On the other hand, the oxidation number of Br decreases and therefore Br is an oxidizing agent and itself is reduced by gain of electron. Result, अभी result क्या लिखना है देखो, the given reaction is redox reaction. So the given reaction is redox because of one species. In this reaction, the oxidation number of one species increases and other species decreases. So that's why the given reaction is a redox reaction. Oxidizing agent कौन है? Oxidant oxidizing agent कौन है? BrO3 minus is oxidizing agent and reducing agent कौन है? H3ASO3 is an reducing agent. Okay, this is first example. Second example, 2Cu2O cuprous oxide 2Cu2O plus Cu2S cuprous sulfide. Cuprous oxide reacts with cuprous sulfide. 2Cu2O plus 2Cu2O plus Cu2S gives 6Cu plus SO2 gas. Cuprous oxide reacts with cuprous sulfide. It gives metallic copper and sulfur dioxide gas. सभी सॉलिड है, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है. नाउ आंसर क्या लिखना है? राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना नहीं आया तो पूरा आंसर आपका गलत आ जाएगा, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -2. ऑक्सीजन का -2 है तो Cu का आप निकाल सकते हैं. ऑक्सीजन -2 Cu +1. ओके, नाउ हियर Cu2S में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और सल्फर का -2. यहाँ पर Cu न्यूट्रल मेटल है इसलिए 0. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu इज 0 एंड इन SO2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2. देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +4. ओके, सो नाउ इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इंक्रीजेस. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर increases from -2 to +4. -2 to +4 means -2 -1 0 +1 +2 +3 and +4 6 से इंक्रीज हो गया. और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर डिक्रीजेस फ्रॉम +1 to 0, 1 से डिक्रीज हो गया. कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 से डिक्रीज हो गया और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से इंक्रीज हो गया. सो देयरफॉर आइडेंटिफाई द स्पीसीज दैट अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. किस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? कॉपर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सल्फर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो कॉपर गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन. एंड सल्फर लॉसेस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन. So loss of 6 electrons by sulfur and gain of 1 electron by copper. So therefore point number 3, the oxidation number of sulfur increases from -2 to +4. The oxidation number of S increases from -2 to +4 and that of Cu decreases from +1 to 0 because oxidation number of one species increases and that of other species decreases. The reaction is spontaneous. Because the oxidation number of one species increases and that of other species decreases, the reaction is a redox reaction. Reaction कैसी है? Redox reaction है. Point number 4. पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सभी इसमें यही पॉइंट लिखने हैं. कौन सी भी रिएक्शन अगर आपको एग्जाम में दी होगी तो पॉइंट यही लिखने हैं. सिर्फ वहाँ पर स्पेसिस अलग अलग आएंगे, रिएक्टेंट अलग और प्रोडक्ट अलग, या फिर यही रिएक्शन आ सकती है. पॉइंट नंबर 4, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इंक्रीजेस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर सल्फर इज रिड्यूसिंग एजेंट. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इसलिए सल्फर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इंक्रीजेस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर सल्फर इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. On the other hand, the oxidation number of Cu decreases and therefore Cu is an oxidizing agent and itself is reduced by gain of electron. So sulfur is oxidized by loss of electron and copper is reduced by gain of electron. So that's why sulfur is an reducing agent and copper is an oxidizing agent. Okay, so next point, result क्या आएगा फिर? Result, the given reaction is redox reaction and oxidizing agent is Cu2O और Cu2S. इन दोनों में से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि दोनों में भी कॉपर है. सो ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज Cu2O और Cu2S एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट इज Cu2S. सल्फर है ना उसमें,
Cu2S। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेंट में ही देखने हैं, प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते, रिएक्टेंट में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिएक्टेंट में या तो Cu2O या फिर Cu2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट इन दोनों में से कौन होगा, सल्फर किस में है, Cu2S, सो देयरफॉर Cu2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या है, H3PO4 plus 3KOH gives K3PO4 plus 3H2O। H3PO4 plus 3KOH gives K3PO4 plus 3H2O। Okay, now in this reaction write the oxidation number of all the atoms of reactants and products। सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले H3PO4 में हाइड्रोजन +1, फॉस्फोरस +5, ऑक्सीजन -2। ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको ही फाइंड करके देखने हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं वो हमने परसों देखा है, इसलिए कल भी मैंने एक्सप्लेन किया है सभी के ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने कल स्टॉक नोटेशन में एक्सप्लेन किया, उसके बाद स्टॉक नोटेशन स्टार्ट किया है। ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन इज -2, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज +5। Now in KOH, oxidation number of K is +1, H is +1 and therefore oxygen is -2। Okay, oxygen -2 है, हाइड्रोजन +1 है, पोटेशियम अल्कली मेटल है +1। K3PO4, K का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -2, सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज +5 एंड इन H2O ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड ऑक्सीजन इज -2। किसका चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, किसी का भी चेंज नहीं हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का +1 है, राइट में हाइड्रोजन का +1 है। लेफ्ट हैंड साइड में फॉस्फोरस का +5 है, राइट में भी फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। देखो, लेफ्ट में फॉस्फोरस का +5, राइट में भी +5। ऑक्सीजन का -2, राइट में भी -2। लेफ्ट में के का ऑक्सीडेशन नंबर +1, राइट में भी के का ऑक्सीडेशन नंबर +1। सो दिस इंडिकेट्स दैट सिंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पेसिस रिमेन सेम, इस रिएक्शन में किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है नहीं। So since the oxidation number of all the species, all the atoms or all the elements remain same, this is not a redox reaction। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल्स। नाउ यहाँ पर आपको अभी 6 एग्जाम्पल दिए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए देखो, आंसर वही लिखना है जो पॉइंट मैंने यहाँ पर देखो कितने पॉइंट दिए, पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सभी एलिमेंट के, दूसरा पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किसका हो रहा है वो लिखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डैश डैश इंक्रीजेस फ्रॉम टू फ्रॉम एंड दैट्स वाई डैश डैश इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और लास्ट में लिखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये 4 पॉइंट लिखना है और फाइनली रिजल्ट लिखना है। ओके, वही पॉइंट लिखना है, सिर्फ यहाँ पर एटम और एलिमेंट या आयन अलग अलग है। तो पहला है I2 2H2O3 -2 गिव्स H4O6 -2 + 2I माइनस। ओके, तो आपको अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखने आए तो आपको ये प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व करने आएंगे। 6 एग्जांपल्स दिए हैं, 3 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किए हैं और 6 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये 6 एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, कल का आज का होमवर्क है। कौन से 6 एग्जाम्पल दिए हैं, देखो यहाँ पर दिए हैं 6 एग्जाम्पल्स। ये 6 एग्जाम्पल सिर्फ सॉल्व करके आपको सेंड करना है मुझे। दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क। ओके, थैंक यू, दिस इज़ टुडेज पार्ट। थैंक्स वंस अगेन।